Good morning student, this is Rajesh and today I am going to teach you the next topic in class 7 geography, natural vegetation and wildlife. Student, in my previous video we already discussed which factors are responsible to variation of different vegetation and wildlife. In those videos, we take an example of Salimon summer camp story. On the multiple factors, our natural vegetation divided into three broad categories: forest, grassland and shrubs. So today we are going to the next topic related to the forest. But before I start my lesson, one thing you must memorize or you can understand it, what we are going to study in this chapter. इस एक चैप्टर में हमने एक समराइज कर रखा है कि हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, सो पहले तो आपको ये नोट करना है, पॉइंट रख लेने हैं कि व्हाट एंड व्हाट वी आर डिस्कस इन दिस चैप्टर, हमें क्या जानना है. सो नंबर फर्स्ट, एज आई टोल्ड यू कि नेचुरल वेजिटेशन ऑफ थ्री टाइप्स on the multiple factor, it depend on divided into three broad category: forest, grassland and shrubs. So first category, forest. We are going to discuss forest. But student, forest are different kinds. ये forest भी अलग अलग तरीके से हैं. उनमें क्या differences हैं, इसको हम discuss करेंगे. But first what we are going to discuss in this chapter: Forest are 6 types we discuss in this chapter. The number 1, tropical evergreen forest. The first one is the tropical evergreen forest. Look at your textbook. Second one is the tropical deciduous forest. Both are tropical evergreen and tropical deciduous. Third one is the temperate evergreen forest. And fourth one is the temperate deciduous plant. Change here tropical and temperate. ये दोनों जोन्स आप जानते हो, फिर भी हम एक बार इसको डिस्कस करेंगे. नंबर 5, मेडिटेरियन वेजिटेशन एंड द नंबर 6, कॉन्फ्लिक्टस फॉरेस्ट. These all 6 types of forest we discuss in this chapter. And in the grassland topic, we discuss two broad categories of grassland and also we learning some tropical grassland found in the different country and their name. कैसे उनके नेम अलग अलग है, किस कंट्री में ये ट्रॉपिकल या टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं, उनके नेम क्या है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, पंपास हो गया, डाउन्स हो गए. ओके, तो ऐसे बहुत सारे शवाना हो गया, तो बहुत सारे हम ग्रासलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे. सो एक और टॉपिक मैंने यहाँ चुना हुआ है सर्ब्स, जो सर्ब्स हैं और थॉर्नी सर्ब्स हैं. सो ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. अंडरस्टूड? ये चीजें हम पढ़ेंगे कि क्या चीजें हमें इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है. ओके, पॉइंट कर लीजिए. सो वी स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज द ट्रॉपिकल evergreen forest. Tropical evergreen forest. Dear students, it is also known as tropical rainforest. इसको हम tropical rainforest भी कहते हैं. So दोनों में correlation है. Evergreen, ever means always, green हरा भरा रहता है, इसलिए इस forest को कहते हैं evergreen forest, tropical evergreen forest. और tropical rainforest. Rain यानी रैन इसमें मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट होती हो तो रैन फॉरेस्ट भी कहते हैं. बट बिफोर वी गोइंग टू फर्दर, फर्स्ट यू डिसाइड वंस अगेन ऑन द ग्लोब विच रीजन आर ट्रॉपिकल एंड विच रीजन आर टेम्परेट. सो अगर हम एक एग्जांपल लें, एक सिंपल सा हम एक ग्लोब क्रिएट कर रहे हैं, यू नो दैट कि आपका 0 डिग्री आपका
प्राइमरी ओके 23 डिग्री नॉर्थ and 23 degree south, 23 and a half degree north and 23 and a half degree south. ये जो part है it is known as the tropical region. ये क्या रहता है tropical. Okay? टेम्परेट की तरफ हम चले so from 23 to 66 and a half degree north and 66 and a half degree south. ये जो बॉम्बे एरिया है इट इज नोन एज द टेम्परेट क्रॉस. सो जब भी आप ट्रॉपिकल पे डिस्कस करें सो आप में डाउट नहीं होना चाहिए कि हम वो रीजन पढ़ रहे हैं कहां पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया, यानी वो इलाके कहां होंगे, इक्वेटर के आसपास होंगे. अब इसे रेन फॉरेस्ट क्यों कहा जा रहा है? सो नो डाउट आप जानते हो कि हमारा जो ग्लोब है, अर्थ है, वो स्लाइटली टिल्टेड, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है. तो जब वो सन के रिवॉल्व करता है तो विच पार्ट फेस द सन रिसीव मैक्सिमम सनलाइट, इट मींस इट टेंपरेचर बिकम हाई. और अगर टेंपरेचर होगा तो एवेपोरेशन ऑफ वाटर बॉडी एक्सेस होंगे और एक्सेस होंगे तो क्लाउड बनाएंगे और रेन भी ज्यादा होगा. तो आप ये जानते हो कि इक्वेटर रीजन्स में टेम्परेचर जो है हाई होता है. क्यों होता है? क्योंकि थ्रू आउट द ईयर इट रिसीव मैक्सिमम सनलाइट. अब ये कैसे इवरग्रीन हो रहा है या रेन फॉरेस्ट हो रहा है? सो अगर मैक्सिमम टेम्परेचर है तो वाटर बॉडी जो है वो मैक्सिमम एवोपोरेट हो रहे हैं और जब एवोपोरेट हो रहे हैं तो क्लाउड बन रहे हैं और पूरे साल लगभग कह सकते हो कि ईच एंड एवरी डे इट मस्ट फॉलिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन. और रेन अगर ज्यादा है तो इवरग्रीन होंगी. So now we are moving to our topic. क्या क्या चीजें हैं? So these thick forest, which forest? Tropical evergreen, also known as tropical rainforest. These were thick forest occur in the region near the equator. ये कहाँ रीजन है इसका? एरिया फाउंड इन द रीजन नियर द इक्वेटर. ये उन्हीं रीजन में पाए जाते हैं जो इक्वेटर के पास है. ये वो रीजन, ये आपका इक्वेटर है जो अर्थ को आपको दो इमेजरी हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है इक्वली पार्ट में. बट इट इज नॉट अ रियल एनी लाइन ऑन द अर्थ व्हिच इज नोन एज द इक्वेटर. इट इज एन इमेजरी लाइन. सो नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक. और ये किसके पास है? ट्रॉपिक के है. जैसे आपने एक डायग्राम में देखा कि ये क्लोज इक्वेटर्स के आसपास और क्लोज टू द ट्रॉपिक, ये ट्रॉपिक के क्लोज हैं. तो ये दो एरियाज हैं यहाँ जो ये ट्री पाए जाते हैं, यहाँ जो फॉरेस्ट पाया जाता है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. और ये उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या 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 फैक्टर्स हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं जो हम आने वाले नेक्स्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस और कॉन्टिन्यूअस फॉरेस्ट में देखेंगे. So hot and receive heavy rainfall throughout the year. Okay? अब ये रीजन क्या करता है? हॉट होता है. मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि अगर आप ग्लोब देखते हो, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ग्लोब टिल्टेड है स्लैंटली और वो जब सबके सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन करेगा तो वो सन का फेस इक्वेटर जो एरिया है वो रीजन है वो मैक्सिमम सनलाइट को रिसीव करता है. और जब मैक्सिमम सनलाइट को रिसीव करेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? हॉट होगा. और जब हॉट होगा तो ट्रांसमिशन एवोपोरेशन ज्यादा होगा और रेनफॉल. ये रीजन मैक्सिमम थ्रू आउट द ईयर ईच एंड एवरी डे रिसीव हैवी रेनफॉल. ओके. द थर्ड वन इज द ट्री. अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के ट्रीज की प्रॉपर्टीज क्या है? तो ट्रीज डू नॉट सेट देयर लिव्स ऑल टुगेदर. कि इनके ट्रीज जो हैं वे अपने लिव्स को एक साथ कभी आप कह सकते हो ना कि सेट नहीं करते, टूटते जाते हैं उनके ब्रांचेस. इसलिए वो हमेशा ग्रीन होते हैं और इन्हीं को देखते हुए पूरे ट्री को सेट करते नहीं है लिव्स को. इसलिए इन्हें एवरग्रीन कहा गया है क्योंकि पत्तियां कैसी होती हैं? ग्रीन होती हैं. पिगमेंट कलरफुल होता है. पर जो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं तो उस क्लोरोफिल के कारण ग्रीन हो गई.
अब ये लिप्स सेट करती नहीं है तो देखने पे हमेशा वो हरी हरी नजर आती है, इसलिए इसको कहा जाता है एवरग्रीन। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम नॉर्थन इंडिया को छोड़ दें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को छोड़ दें जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है और मैक्सिमम है, आप जिस रीजन में हो इस रीजन में देखो कि ऑटमन सीजन है या समर सीजन के बाद जो आता है उसमें प्लांट या ट्रीज जो भी है, ट्री भी एक प्लांट ही है, वो अपने लिव्स को सेट कर देते हैं एंड सूख जाते हैं, काल हो जाते हैं और फिर वो ग्राउंड पे आ जाते हैं। अब रीजन क्या है कि क्यों ये सेट करते हैं? तो आप जानते हो कि हमारे यहाँ वो हैवी रेनफॉल नहीं होता है जो इक्वेटोरियल रीजन में होता है, और प्लांट को समर के समय में और भी वाटर की जरूरत हो जाती है, और जब हॉट होगा तो प्लांट की एक और प्रॉपर्टीज है ट्रांसपिरेशन। जैसे हमारी बॉडी में स्वेटिंग है कि पोर्स होते हैं, इसलिए उनके लिप्स में जो स्टोमेटा होते हैं, तो जब एक्सेस हीट होता है तो प्लांट भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाटर को ट्रांसपिरेशन में रख देता है, यानी वाटर को एवपोरेट कर देता है थ्रू देयर स्टोमेटा। इस कंडीशन में तो वाटर चाहिए, और हम समर में देखते हैं कि बरसात होती भी नहीं है, तो उसको जो रिक्वायरमेंट है वाटर का वो और भी कम होता जाता है। तो ट्री इससे अच्छा है कि जो एडॉप्टेशन करने के लिए इससे अच्छा है कि हॉट तो रहेगा, उनको उनका कंट्रोल तो है नहीं कि टेम्परेचर को रोक सके, तो वे क्या करते हैं कि वे कहते हैं कि ये जो ट्री का लिप्स रहेगा ही नहीं तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, इसलिए वो ट्री के लिप्स को क्या करते हैं समर सीजन या ऑटमन सीजन में वे सेट कर देते हैं। बट ये कंडीशन हमारा इक्वेटोरियल रीजन में नहीं है, ट्रॉपिकल रीजन में नहीं है, क्योंकि वहां तो एक्सेस वाटर है, प्रत्येक दिन वाटर आता है, इसलिए वे अपने ट्री लीव्स को सेट नहीं करते हैं। दैट इज व्हाई नोन एज द एवरग्रीन प्लांट या एवरग्रीन फॉरेस्ट। थिक कैनोपीज। अब हम कैनोपी वर्ड देखें, कैनोपी क्या होता है। ओके, थिक कैनोपी ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्री। क्लोजली स्पेस का मतलब है कि बहुत ही पास पाए जाते हैं, और पास। ये देखो कैनोपी क्या है कि आप देखो तो ना अपर पार्ट है प्लांट का, जो ब्रांचेस होते हैं लीव्स के साथ, वे के ऊपर एक आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैनोपी। तो थिक कैनोपीज, थिक जो घनी कैनोपीज हैं ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्री, जो पास पाए जाते हैं ट्री, डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट द फॉरेस्ट इवन डे टाइम। ये पॉइंट आप समझने को, ये बिल्कुल आप समझें कि कितने ठीक होते हैं कि सनलाइट भी ग्राउंड पे नहीं आ पाता है। रीजन क्या है? क्योंकि जो कैनोपी है, जो ब्रांचेस हैं, वो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाते हैं, और जो वो क्या होते हैं, आप साइंस में पढ़े होंगे, ट्रांसलूसेंट होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, ओपेक होंगे। तो प्लांट के लिप्स क्या ओपेक है, लाइट उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, ब्लॉक कर देते हैं। तो जब लाइट नहीं जाएगी तो क्या होगा, डार्कनेस होगा, अंधेरा होगा, तो इतने घने होते हैं, ऊपर से कवर अप कर देते हैं कि डे टाइम में भी लाइट जो है ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाती है। अब इसका एडवांटेज क्या है? आपने पूछा होगा कि सर वेजिटेशन के लिए सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, एंड तो अब अगर हम देखें कि फॉरेस्ट के ग्राउंड में जो घने अंधेरे हैं और मडी वाटर है, बरसात होती है तो मडी है, कीचड़ है, ये एक बहुत ही आइडियल कंडीशन दे देता है बहुत सारे रेप्टाइल्स के लिए। ओके, आपने क्लास 6 में अमेज़न रिवर और अमेज़न फॉरेस्ट का एग्जांपल देखा होगा। ऑलमोस्ट एवरी रेप्टाइल इज फाउंड इन द अमेज़न फॉरेस्ट। व्हाई? बिकॉज दिस इज द एवरग्रीन फॉरेस्ट। वो आइडियल कंडीशन होता है, एनाकोंडा से लेकर के बहुत तरह के रेप्टाइल्स वहां पाए जाते हैं, डिफरेंट काइंड। ओके, सो ये बहुत सारे रेप्टाइल्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि ये सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी बहुत ही वैरायटी हो जाती है। ट्री लाइक रोजवुड, इबोनी, महोगनी आर कॉमन। अब कौन कौन से ट्री पाए जाते हैं? सो अपने टेक्स्ट बुक में मे बी पिक्चर्स गिवन हो,
तो आप रोजवुड देख लें, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, तो आपको एक्चुअली यहाँ पे दिखाते हैं। हाँ, महोगनी वगैरह हम अपने इंडिया में इस टाइप में दिखा सकते हैं। सो ट्रीज लाइक रोजवुड, जो रोजवुड है, इबोनी है, महोगनी है, लॉन्ग ट्री होते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्री होते हैं, है ना, और बहुत स्ट्रॉन्ग, इसके जॉइंट बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और लाइट होते हैं। और कॉमन, यहाँ पे ये कॉमन पाए जाते हैं। कॉमन का सेंस होता है बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ओके, एंड मैंने आपको पहले बताया था कि दीज आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और इस एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। सो स्टूडेंट, in next video we will come with a new topic, and that is the tropical deciduous forest. But before I am coming with such topic, you need to learn to read it from your notebook. I hope you must follow my instruction. It is in favor of you. Till then, thank you. Have a nice day.